શાળા સેટેલાઇટ વિસ્તારમાં આવેલા શિવપૂજા કોમ્પ્લેક્સમાં ત્રીજા માળ પર આવેલ જીમ સહિત હેર એન્ડ બ્યુટી લોન્જમાં ફાટી નીકળેલી આગમાં બે નિર્દોષ મહિલાઓના મોત નીપજતા સમગ્ર શહેરમાં ભારે ચકચાર મચી જવા પામી છે। ઘટનાને પગલે પોલીસથી માંડીને ફાયર વિભાગ અને સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા તપાસનો ધમધમાટ હાથ ધરવામાં આવ્યો છે। પોલીસ દ્વારા જીમ અને હેર એન્ડ બ્યુટી લોન્જના બે સંચાલકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જ્યારે એક આરોપીને વોન્ટેડ જાહેર કરાયો છે। આ ઉપરાંત મ્યુનિસિપલ કમિશનર શાલિની અગ્રવાલ દ્વારા આ ઘટનામાં તળિયા ચાટક તપાસ કરવાની સાથે જવાબદાર વિરુદ્ધ સખત કાર્યવાહીના આદેશ ફટકારવામાં આવ્યા છે, જેને પગલે મધ્યસ્થ શહેરી વિકાસ વિભાગ દ્વારા આજે સવારથી જ કોમ્પ્લેક્સની સાથે સંકળાયેલ તમામ ફાઇલોની તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે, જેમાં બીયુ મેળવ્યા બાદ સન 2011માં ઇમ્પેક્ટમાં કેટલું ગેરકાયદેસર બાંધકામ કરવામાં આવ્યું હતું અને તે પૈકી કેટલું મંજૂર થયું છે તેની પણ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે। રાજકોટ ગેમ ઝોન હોનારતમાં 20થી વધુ નિર્દોષ બાળકોના મોત બાદ સમગ્ર રાજ્યમાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ હતી। આ ઘટનાને પગલે સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા પણ શહેરભરમાં મોટા પાયે સીલિંગની કામગીરી હાથ ધરી હતી અને 2-3 મહિનાની કવાયત હાથ ધરાયા બાદ સ્થિતિ જેસે थे જેવી થઈ જવા પામી હોય તેમ જણાઈ આવી રહ્યું છે। ગેરકાયદેસર બાંધકામથી માંડીને ફાયર સેફ્ટીના મુદ્દે હાથ ધરવામાં આવેલા અભિયાન કાગળ પર જ હોય તેમ હવે સ્પષ્ટ થઈ રહ્યું છે। શિવપૂજા કોમ્પ્લેક્સમાં જીમ એન્ડ સ્પામાં लागेली આગમાં ફાયર એનઓસીથી મ્યુનિસિપલ કમિશનર શાલિની અગ્રવાલ દ્વારા આ ઘટનામાં તળિયા ચાટક તપાસ કરવાની સાથે જવાબદાર વિરુદ્ધ સખત કાર્યવાહીના આદેશ ફટકારવામાં આવ્યા છે, ત્યારે ઘટનાના ત્રીજા દિવસે પણ અઠવા જોન પ્રાથમિક રિપોર્ટ રજૂ કરવામાં ધરાર નિષ્ફળ સાબિત થયું છે। બીજી તરફ ગતરોજ મ્યુનિસિપલ કમિશનર શાલિની અગ્રવાલ દ્વારા શિવપૂજા કોમ્પ્લેક્સમાં આવેલ જીમ એન્ડ સ્પામાં આગ લાગવાની ઘટનાને ગંભીરતાથી લેવાની સાથે સમગ્ર ઘટનામાં તલસ્પર્શી તપાસ કરવા માટે મધ્યસ્થ શહેરી વિકાસ વિભાગની સાથે અઠવા ઝોનને આદેશ કરવામાં આવ્યા છે, જેને પગલે મધ્યસ્થ શહેરી વિકાસ વિભાગ દ્વારા આજે સવારથી જ કોમ્પ્લેક્સની સાથે સંકળાયેલ તમામ ફાઇલોની તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે, જેમાં બીયુ મેળવ્યા બાદ સન 2011માં ઇમ્પેક્ટમાં કેટલું ગેરકાયદેસર બાંધકામ કરવામાં આવ્યું હતું અને તે પૈકી કેટલું મંજૂર થયું છે તેની પણ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે। આ સિવાય કોમ્પ્લેક્સના ટેરેસ પર ઊભો કરવામાં આવેલો ડોમ અંગેની તપાસ પણ હાથ ધરવામાં આવી છે। सूरत सिटी के सिटीलाइट एरिया में एक शिव पूजा शॉपिंग सेंटर है, उसके 3rd फ्लोर में कल शाम को आग लगी थी। उस बनाव में सिक्किम की रहने वाली 2 महिलाओं की डेथ हो गई थी और 3rd फ्लोर पे जिम 11 के नाम से एक जिम है, वो वहाँ पे जिम चल रहा था और उस जिम के अंदर एक ALF सैलून एंड वेलनेस भी चल रहा था। उस समय दिवाली के कारण जिम की छुट्टी थी, तो जिम में एक्सरसाइज करने वाले या ट्रेनर कोई भी उस समय हाजिर नहीं थे और सैलून है वो चालू था। तो उस सैलून में 4 महिलाएं थी, जिनमें से 2 नागालैंड की थी और 2 सिक्किम की थी, वो हाजिर थी और एक केयरटेकर और एक उसका दोस्त, ऐसे टोटल 6 लोग वहाँ पे जब आग लगी उस टाइम पे हाजिर थे। और आग लगने के बाद में जो केयरटेकर है उसको सबसे पहले आग का पता लगा, तो उसने जोर से शोर मचाया, तो केयरटेकर, उसका दोस्त और 2 महिलाएं जो नागालैंड से बिलोंग करती है वो भाग गए और ऊपर 2 महिलाएं और थी, उनको भी इन्फॉर्म किया गया पर वो उसमें से निकल नहीं पाई और उन दोनों को रेस्क्यू किया गया फायर डिपार्टमेंट की मदद से और सिविल हॉस्पिटल में रेफर किया गया, जहां उन्हें ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया। उन दोनों महिलाओं का नाम, पहली महिला है बिन्नू हांगमा, ये असराज लिंबू इसकी पुत्री है और ये यहाँ आदर्श सोसाइटी सूरत में रहते हैं और मूल रूप से ये पश्चिमी सिक्किम जिले के रहने वाली है। दूसरी है मनीषा, ये पूर्णभद्र दमाई की बेटी है और ये भी आदर्श सोसाइटी सूरत में रहती है और ये चुजा चैन पूर्वी सिक्किम की रहने वाली थी। इनमें से बिन्नू की जो डेड बॉडी है वो वहाँ पे एक पेडिक्योर मैनिक्योर का रूम बना हुआ था, उसमें से रिकवर हुई और मनीषा की जो डेड बॉडी है वो बाथरूम के अंदर से रिकवर हुई और वहाँ पे पानी भी उस टाइम पे चल रहा था। इन दोनों की डेथ होने के बाद में हमने SMC जोन ऑफिस को, SMC के फायर डिपार्टमेंट को, FSL को और टोरेंट पावर को, इन सबको इन्फॉर्म किया और आज सभी डिपार्टमेंट ने अपनी अपनी विजिट पूरी की है। फायर डिपार्टमेंट ने अपनी रिपोर्ट दी है, जिसमें ये 3rd फ्लोर है, इसके पास में फायर की NOC नहीं होना उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दिया है और उन्होंने इस संबंध में इन जिम ओनर को नोटिस भी दिए हुए थे कि आपके यहाँ पे फायर की NOC नहीं है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दिया है कि यहाँ पे फायर डिटेक्शन का सिस्टम नहीं था, स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं था, सेफ्टी के साइनेजेस हैं वो भी नहीं थे
इमरजेंसी एग्जिट है वो भी व्यवस्थित नहीं था, इस वजह से इनको एनओसी नहीं दी हुई थी और बिना फायर के एनओसी के ये जिम और ये स्पा जो है वो यहाँ पे चल रहा था। तो इस कारण से 3 लोग, जिसमें एक वसीम रऊफ चौहान है, ये उधना दरवाजा सूरत का रहने वाला है, और दूसरा इसका पार्टनर है शाहनवाज हारून मिस्त्री। ये दोनों जो जिम 11 है उसके दोनों ओनर हैं और दोनों पार्टनर हैं। शाहनवाज जो है वहाँ पे ये एक्टिवली जिम मैनेजर का भी साथ में काम करता है, और वसीम जो है वो लीगल मैटर देखता है, जिम में कभी कभी आता है और अपने पिता के साथ एक कंस्ट्रक्शन का काम भी करता है। तो इन दोनों के खिलाफ में, और एक आदमी जो ऊपर जो सैलून बना हुआ है उसका ओनर है दिलशाद खान सलीम खान, ये अडाजन का रहने वाला है और मूल रूप से ये यमुनानगर हरियाणा का रहने वाला है। तो इन तीनों व्यक्तियों के खिलाफ बीएनएस की कलम 105, 110 और 54 के तहत एफआईआर रजिस्टर की गई है, और इनमें से शाहनवाज हारून मिस्त्री और दिलशाद खान सलीम खान, इन दोनों को अभी डिटेन किया गया है, और वसीम अभी उसका फ़ोन ऑफ आ रहा है, तो हम लोग उसको पकड़ने के लिए ट्राई कर रहे हैं। हमारी टीम उसके पीछे लगी हुई है और आगे का इन्वेस्टिगेशन जो है वो चालू है। अभी एफएसएल से और फाइनल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, ये सब रिपोर्ट आना बाकी है। एसएमसी की तरफ से भी, जोन ऑफिस की तरफ से भी रिपोर्ट आना बाकी है। वो रिपोर्ट्स आने के बाद में और पूछताछ करने के बाद में आगे का इन्वेस्टिगेशन चालू रहेगा। और जो जिनकी डेथ हो गई मृतका है, उनमें से जो बिनू है उसका जॉब पे दूसरा ही दिन था, एक ही दिन उसने पहले काम किया था, और जो मनीषा है वो 15 दिन पहले ही उसने ये सैलून ज्वाइन किया था। पहले वो 5-6 महीने पिछले साल काम करके गई थी, बट अभी 15 दिन से यहाँ पे वो काम कर रही थी। फायर नॉर्म के हिसाब से जो भी आदमी उस जगह का एट दैट टाइम कस्टोडियन है, उसकी जवाबदारी बनती है कि वो सारा फायर वगैरह की जितने भी एनओसी है वो लेके बाद में काम करे। सर, इन्होंने जो जिनके ऊपर स्पा बनाया था उसका लीगल प्रोसीजर पूरा किया हुआ है? हाँ, उसके लिए आज एसएमसी की हमारी जोन की टीम है, उन्होंने यहाँ का विजिट किया है, और वो अभी या फिर सुबह अपनी रिपोर्ट देंगे, तो वो रिपोर्ट देख के बाद में पता लगेगा। आरंभिक पूछताछ में इन्होंने बताया कि इम्पैक्ट फी जो है वो इस जगह का भरा हुआ है, लेकिन वो जो मौजूदा स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से भरा हुआ है या नहीं, वो एसएमसी की टीम जो है उन्होंने विजिट किया है, वो अपनी रिपोर्ट देंगे तो उसके बाद में क्लियर होगा। सर, ये जो पुरावा लिया गया है अभी सब जगह, एक्चुअली बता सकते हैं किन प्रकार के पुरावा इसमें ये एफएसएल की टीम में? एफएसएल की टीम यहाँ आती है तो जैसे आग लगती है तो वो अपने जो फिजिकल टीम है उनको, इलेक्ट्रिकल टीम है उनको बुलाते हैं, तो वो ये एस्टेब्लिश करते हैं कि आग कहाँ से शुरू हुई और किस कारण से शुरू हुई, और इसमें क्या ऐसा मटेरियल था जिसके कारण आग फैल गई। तो वो सैंपल लेके गए, सैंपल की जांच करके बाद में वो लोग अपनी रिपोर्ट देंगे। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी रिपोर्ट दे दें। वो भी बहुत जरूरी रहेगा इसके साथ। हाँ, निश्चित रूप से आग लगने का कारण है और आग कहाँ से लगी है वो उससे ही एस्टेब्लिश हो पाएगा। ઘટનામાં બે વસ્તુ સામે આવી હતી। એક તો ફાયર એનઓસી ને લઈને નોટિસ આપવા છતાં પણ જો ચાલુ રહેતા તો ફાયર અધિકારીની જવાબ, બીજું કે જે ગેરકાયદેસર ઉપર બોમ્બ બનાવવામાં આવ્યો તેને લઈને ઝોનના અધિકારી એ વિસ્તારના ફિલ્ડ અધિકારીનો બી જવાબદારી નક્કી થાય કે એને બી ગુનેગાર બનાવવામાં ભૂતકાળમાં સુરતમાં આવ્યા છે। તો આ ઘટનામાં બંને વ્યક્તિઓને આરોપી બનાવવામાં આવશે। हम सारी एक बार रिपोर्ट सारी कलेक्ट करते हैं, उस जो ये डिपार्टमेंट है सारे अपनी अपनी रिपोर्ट दे दें, वो लेने के बाद में हम लोग एक बार विचार विमर्श करके, और किसी भी जिसका भी रोल है उसको किसी को नहीं बख्शा जाएगा। इसमें एकदम फेयर इन्वेस्टिगेशन स्पष्ट रूप से होगा। और पहले जब एक्सीडेंटल डेथ दाखिल किया था तो इसकी तपास पीएसआई के पास थी, अभी ये गुना रजिस्टर करके इसकी तपास जो है वो उमरा पीआई को दी गई है, तो एकदम निष्पक्ष जांच की जाएगी। सर, ये जो 2 लड़कियां हैं किस तरह कांटेक्ट में आई, क्योंकि सिक्किम से है, कितनी सैलरी पर, किस बिहाफ पर बुलाया गया? ये इनके यहाँ जो सैलून चलाने वाला है इसके साथ में एक स्मिता करके लड़की है जो सिक्किम की है, और वो लंबे टाइम से इसके साथ में काम कर रही है। ये सैलून चलाने वाले का एक और सैलून अमेजिया क्लब में वराछा में भी चल रहा है, तो वो स्मिता के टच में ये लड़कियां थी और यहाँ वैकेंसी थी, तो इस तरह से बात करके ये लोग यहाँ पे आई थी, और 18 से 20,000 22,000 रुपए के आसपास इनकी सैलरी रहती है। तो ये जो गुमास्ता लाइसेंस है वो दोनों जिम और पास सैलून के नाम पर है या अलग एक ही है? वो अलग अलग होना चाहिए था। वो इसका जो सैलून है इसका हमने अभी मांगा है, उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया है। वो कह रहे हैं कि हमारा जो कागज़ है, कुछ कागज़ अंदर थे जो जल गए हैं शायद, तो हम उसकी कॉपी आपको लेके प्रोवाइड कर देते हैं।